नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विथ अवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी. For our today's biology class, we are talking about this chapter, life processes in living organisms, part 1. Now, there is this flowchart that is very frequently being asked for examination. This flowchart mein we need to understand the first flowchart is talking about the energy production in aerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन में कैसे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स टूटते हैं वो. वेयर एज द सेकेंड फ्लो चार्ट इज ऑल अबाउट एनर्जी प्रोडक्शन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन. नाउ बेटा, हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए. एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए. अब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स कैसे ब्रेक होते हैं वो डिस्कस करते हैं. टू बिगिन विथ द फर्स्ट फूड प्रोडक्ट दैट वी विल कंसिडर विल बी लिपिड्स. बेटा, लिपिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फैट्स. फैट्स आर फाइनली ब्रोकन डाउन आफ्टर डाइजेशन. हमारे खाने में जो भी फैट्स होता है ना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके अल्टीमेटली वो टूट जाता है फैटी एसिड्स में. नेक्स्ट, फिर हमारे खाने में जो भी प्रोटीन वाला पार्ट है, ऑल दोज प्रोटीन्स आर अल्टीमेटली ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स. So the complex protein finally gets converted into amino acids. Whereas the most important constituent of our diet will be carbohydrates. And carbohydrates में सबसे important nutrient will be glucose. Now this carbohydrate undergoes breakdown. Glucose undergoes breakdown. The process is called as glycolysis. Now here beta, glyco means glucose and lysis means to break. After undergoing glycolysis, glucose gets converted into this acid called as pyruvic acid. See here, after if you cannot remember, you can remember a shortcut of PAK. It's like बोर हो रहा है तो हम हिंदी में बोलते हैं ना क्या पक रहा है. Okay, PAK. Now P is pyruvic acid beta. A will go for acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A. Then K will go for Krebs cycle. So this acetyl coenzyme A will undergo Krebs cycle and then it produces carbon dioxide plus water and lots of energy in the form of ATP. One very important point that we have to remember over here is whenever the mode of respiration is aerobic respiration, it produces more energy. Remember the number, it produces 38 ATP from one molecule of glucose. और जब वो ग्लूकोज एनारोबिक रेस्पिरेशन के तरीके से टूटता है ना तो वो सिर्फ 2 ATP बनाता है. So here we have to remember that anaerobic respiration produces very less amount of energy as compared to aerobic respiration. Moving on. Other than this shortcut I will erase it from here. We will connect our points. Amino acids and fatty acids ultimately they get converted into acetyl coenzyme A. So we will have to get along with one arrow which connects amino acids to acetyl coenzyme A. Same over here. Fatty acids finally they get converted into acetyl coenzyme A. फिर ये फैटी एसिड्स एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने के बाद क्रेब्स साइकिल में जाते हैं और अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट्स मिलता है. द एनर्जी रिजेंबल्स 38 ATP. राइट, मूविंग ऑन. नाउ कमिंग टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्स्ट स्टेप इज सेम एज कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज ग्लूकोज अंडरगोइंग ग्लाइकोलाइसिस. After glycolysis, it produces same pyruvic acid. Now, this pyruvic acid undergoes a fermentation.
fermentation, easy language बेटा remember, it is the breakdown of nutrients. कोई ना कोई पोषण, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट टूटता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में. सो फर्मेंटेशन इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट प्रोडक्ट्स. It produces different products like vitamins and vinegar. और ये सब हमको मिलता है with the help of various microbes. So various microbes will give us this. So let's connect. However, beta, this same pyruvic acid this glucose breaks down into pyruvic acid, and this pyruvic acid can have a different future. So this pyruvic acid undergoes fermentation. अब ये फर्मेंटेशन अगर ह्यूमन मसल सेल्स में हो रहा है या फिर आरबीसी के अंदर, एरिथ्रोसाइट्स के अंदर हो रहा है, सो इट विल प्रोड्यूस दिस एसिड कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड. वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर फॉर लाइफ लॉन्ग इज लैक्टिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मसल फटीग. फटीग यानी टायर्डनेस, यानी थकावट. अब समझो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 10 फ्लोर्स का बिल्डिंग चढ़ के जा रहे हो, सो कुछ टाइम बाद ना तुम्हारे पैर के मसल्स दुखने लगते हैं. क्यों दुखने लगते हैं? क्योंकि वो थक जाते हैं. क्यों थक जाते हैं? क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड बनता है. सपोज द टीचर गिव्स यू पनिशमेंट दैट यू हैव नॉट डन होमवर्क, सो गेट आउट ऑफ द क्लासरूम, रेज योर हैंड एंड स्टैंड. अब तुम हाथ ऐसा करके खड़ा है, थोड़ी देर के बाद तुम्हारा मसल्स दुखने लगेगा. मसल्स बोलेगा होमवर्क करके आना चाहिए था ना, फोकट पनिशमेंट मिला. अब कैसा है ना, जैसे ही टीचर अपनी नज़रें घुमा लेता है तो हम हाथ नीचे कर लेता है, फिर टीचर देखता है फिर ऊपर कर लेता है. फिर टीचर अपनी नज़रें घुमा लेता है, फिर हम थोड़ा पोज मारता है, ये राइट. अब ये हाथ में थकावट, दर्द क्यों महसूस हो रहा है? बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड. जब भी मसल थक जाता है ना, तो हमेशा साइंटिफिकली याद रखो उसके अंदर लैक्टिक एसिड बनता है. और बच्चों बात ये है कि ये लैक्टिक एसिड बनेगा ह्यूमन मसल सेल्स में. सो आई विल राइट हियर दिस इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन मसल्स and it is produced in erythrocytes. Erythrocytes is just hi-fi language for RBC. Similarly, yes, you should remember there is something called as leukocytes, which is hi-fi language for WBC. And blood में एक और होता है thrombocytes, which is hi-fi language for blood platelets. Okay. मलेरिया और डेंगू दो ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें पेशेंट का प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है. अगर ब्लड से रिलेटेड और डिटेल्ड इंक्वायरी चाहिए देन बेटा यू कैन गो टू माय प्लेलिस्ट ऑफ एनिमल टिश्यूज़, और उस एनिमल टिश्यूज़ के प्लेलिस्ट में यू कैन चेक ब्लड वाला लेक्चर, जहां हमने 1.5 घंटे में ब्लड का पूरा पोस्टमार्टम किया है. उसमें कौन से सेल्स होते हैं, क्या क्वांटिटी होता है, उसका क्या फंक्शन होता है. So that's a bloody lecture. You should not call it as bloody lecture. It's a lecture which is talking about blood. All right, moving on. Then यही फर्मेंटेशन ना अगर अलग अलग इंडस्ट्री में हुआ तो ये अल्कोहल बना के देता है. और अल्कोहल में बेटा ये बनाता है इथेनॉल. इथेनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल. Now this ethyl alcohol is produced because of one microorganism called as yeast. So you have to remember this beta. All right. Now everyone take a screenshot of this. बच्चों इसका एक screenshot ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं. All right. Let's continue beta. Now anaerobic respiration में what are the important key points that we have to remember? So point number 1 for anaerobic respiration we should remember anaerobic respiration takes place in absence of oxygen. Second very important point, there are 2 important steps of anaerobic respiration. So 2 steps of anaerobic respiration are
एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जिसमें से पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है फर्मेंटेशन, और बेटा दूसरा वाला तो वही कॉमन है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। मैंने एक लेक्चर में तुमसे कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनेरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है बेटा। अब फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है ना जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, और ये जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है ना, ये अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। सो दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय माइक्रोब्स, स्पेसिफिकली यीस्ट। अब ये फर्मेंटेशन में ईदर इट कैन बी इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, जहाँ इथाइल अल्कोहल बनता है, दैट इज इथेनॉल इज फॉर्म, और यही फर्मेंटेशन अगर किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ, जैसे कि लैक्टोबैसिलाई, सो दिस सेम फर्मेंटेशन इट विल प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड यूजुअली ह्यूमन मसल्स में बनता है और एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी में बनता है, एंड इसके वजह से द मसल अंडरगोज अ फटीग। फटीग इज द एबिलिटी टू गेट टायर्ड, हमारे मसल्स थक जाते हैं बेटा। ओके अब इसमें ना सबसे ज़रूरी बात यह है बच्चों कि यही फर्मेंटेशन, यही लैक्टोबैसिलाई इडली, डोसा, उत्तपा ये सब बनाने के काम आता है। ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। सो फर्मेंटेशन से ज़्यादा अगर यीस्ट ने फर्मेंटेशन किया तो आपको इथाइल अल्कोहल मिलेगा, और लैक्टोबैसिलाई ने किया तो आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा। मूविंग ऑन, फर्मेंटेशन प्रोड्यूसेस ओनली 2 ATP, यानी एनेरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस वेरी लेस एनर्जी। अभी मैंने तुमसे बोला था एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP मिलता है, यहाँ पे इट प्रोड्यूसेस वेरी लेस एनर्जी, दैट मीन्स इट प्रोड्यूसेस ओनली 2 ATP फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इतना तुमको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ एनेरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट मूविंग ऑन, अब यहाँ पे ना कार्बोहाइड्रेट्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन हमने देख लिया कि ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटेगा तो या तो इथाइल अल्कोहल बनाएगा या तो लैक्टिक एसिड बनाएगा। नाउ नेक्स्ट न्यूट्रिएंट दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में द फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर सपोज टू नो इज कि प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो मीन्स लार्ज, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है इसलिए उसको मैक्रोमोलिक्यूल बोला है। सेकेंड, प्रोटीन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, प्रोटीन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल ओरिजिन are called as a first class protein. देखो बच्चों कैसा है ना कि हमको प्रोटीन्स दाल, मूंग, मटकी, चना, सोयाबीन ये सब खाने से भी मिलता है, बट ये प्रोटीन्स कहाँ से मिल रहा है, ये प्लांट ओरिजिन के प्रोटीन है। बट वही प्रोटीन अगर एनिमल ओरिजिन से आता है जैसे एग, फिश, सो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन, क्योंकि उससे ह्यूमन बॉडी को जबरदस्त ताकत मिलती है। ओके, बट दैट डजंट मीन दैट इट इज मैंडेटरी दैट वी ऑल शुड बिकम नॉन वेजिटेरियन एंड वी शुड स्टार्ट किलिंग एनिमल्स। ओके, दैट्स अ पर्सनल चॉइस, उसमें कैसा ना कि कोई इन्फ्लुएंशियल व्यू पॉइंट नहीं दे सकते हम लोग, जिसको जो खाना है खाओ। अब वो चाइना को ही देख लो, वो छोटी आँख वाला चीनी लोग, हमारे घर में कॉकरोच आता है हम लोग बोलते हैं ओ कॉकरोच, डर जाता है। अब चाइना में अगर घर में कॉकरोच आता है लोग बोलते हैं हाँ खाना निकल आया बाहर, कॉकरोच खा जाता है, बोलो। ओके, एनीवे फॉरगेट, मूविंग ऑन। नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड के चेन्स के बने होते हैं। सो पॉलीमर इज लाइक रेलवे ट्रेन, ये पूरा प्रोटीन है और इसका हर एक डब्बा, हर एक कोच अमीनो एसिड है, और दो डब्बे को जो जोड़ रहा है ना उसको हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज। दो डब्बे को जोड़ने वाले बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं
पेप्टाइड लिंकेज। नेक्स्ट, अब टेक्स्ट बुक में ना एक फोटो दिया जहाँ प्रोटीन दिया और ऐसे बहुत सारे सर्कल है और ये बताया कि ये प्रोटीन हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ काम में आता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो इंपॉर्टेंस हम लोग इसको सिंपल स्टाइल में प्रेजेंट करते हैं। अब बॉडी का कौन सा हिस्सा प्रोटीन का बना है। सो पॉइंट नंबर 1, बॉडी के मेजॉरिटी हॉर्मोन्स प्रोटीन के बने। अब ये हॉर्मोन्स निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड ना हमारे ब्रेन में होता है, यहाँ पे अंदर की तरफ, ओके, अप्रोक्सीमेटली यहाँ से और यहाँ से जाएंगे ना तो मिड पॉइंट पे आएगा। वो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ग्रोथ हार्मोन्स और तरह तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसके वजह से हम ग्रो हो जाता है। फ्रॉम इत्तूसा सेल वी बिकम कित्तूसा, रिमेंबर, ओके। सो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स होते हैं ना वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। नेक्स्ट, पैनक्रियाज के 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स दिए हैं टेक्स्ट बुक में, एक तो है इंसुलिन और दूसरा एक एंजाइम है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। इंसुलिन जो है ना वो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। सो इट कंट्रोल्स, इंसुलिन कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल। और अगर इंसुलिन की कमी होगी ना हमारे बॉडी में तो हमको ये बीमारी हो जाती है जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। फिर यहां डॉक्टर मीठा खाने ना बोल देता है, ओके। सो रिमेंबर, इंसुलिन का निकलना अगर बंद हो गया ना, रिमेंबर द राइमिंग, इंसुलिन बंद बोले तो मीठा बंद। अगर तुम्हारे बॉडी में इंसुलिन नहीं निकल रहा है ना तो तुम मीठा नहीं खा सकते हो, क्योंकि इंसुलिन उस मीठे शुगर को कंट्रोल करता है, उसके लेवल को मेंटेन करके रखता है। बट इंसुलिन अगर नहीं रहेगा ना तो ये शुगर का लेवल बढ़ते जाएगा, उस डिजीज को बोला जाता है डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट, और कौन सा पार्ट प्रोटीन का बना है, तो हमारे बोन्स के अंदर ऑसीन नाम का प्रोटीन होता है। रैदर ये भी याद रखो, हमारे कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रिन नाम का प्रोटीन होता है। हमारे मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन नाम के 2 प्रोटीन होते हैं। एक्टिन और मायोसिन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। दे आर कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बिकॉज इसके वजह से हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं बेटा। वेरएस हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट हीमोग्लोबिन, ये भी प्रोटीन्स का बना होता है। एंड दिस हीमोग्लोबिन इज नथिंग बट इट इज ऑक्सीजन कैरियर। जैसा हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है ना, वैसा मसल्स में मायोग्लोबिन होता है, और ये मायोग्लोबिन भी प्रोटीन का बना होता है। और तो और वेरी इंपॉर्टेंट, विल कंटिन्यू हियर, पॉइंट नंबर 6, आवर स्किन, हेयर एंड नेल्स, skin, hair and nails are also made up of protein which is called as keratin. केराटिन ही वो प्रोटीन है जो सारे एनिमल्स का कवच होता है। जैसे हमारा कवच स्किन है, हेयर है और नेल है, राइट, वैसे ही बर्ड्स का जो फेदर है, काऊ बफेलो का जो हॉर्न होता है, वो एनिमल्स का जो हूफ होता है, पैर के नीचे जो कड़क वाला पार्ट रहता है ना, जैसे घोड़े के पैर के नीचे जहाँ हम लोग नाल ठोक देते हैं, वो कड़क वाले पार्ट को हूफ बोलते हैं। ये भी सब केराटिन का बना होता है और केराटिन भी एक तरह का प्रोटीन है, ये याद रखो। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 के बाद पॉइंट नंबर 7, हमारे इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं ना, विच इज कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन इज नथिंग बट एंटीबॉडी फाइटिंग सेल्स, जो हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं, जर्म्स से लड़ते हैं, ओके। दीज फाइटिंग सेल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर ऑफ वेयर एंड टेयर ऑफ बॉडी, ओके। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन दैट वी आर सपोज टू नो। चलो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बेटा। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू बेटा। नाउ, अदर देन दीज इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, point number 8, proteins are also present in our cell membrane. Cell membrane is also called as a plasma membrane. प्लाज्मा, माँ को कभी भूलने का नहीं, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और तो और तुमको ये प्रोटीन और कहाँ मिलेगा, हमारा स्किन का जो पिगमेंट है ना, मेलानिन, स्किन पिगमेंट इज मेलानिन, इसके वजह से हमारा स्किन का कलर डिसाइड होता है। और ये मेलानिन भी प्रोटीन्स का ही बना होता है बच्चों। जो लोग डार्क होते हैं ना, जैसे अफ्रीकन्स, राइट,
वेस्टर्न कंट्री में अगर किसी को तुम बोल दोगे ना ब्लैक, डार्क, निग्रो, इट्स एन अब्यूज़, लीगल एक्शन होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ रिलीजन को लेके फाइट होता है ना, वैसे वहाँ पे रेसिज्म को लेके फाइट होता है। हमारे इंडिया में ये अच्छा है, हमारे इंडिया में ये ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, बिकॉज इंडिया इज ऑलरेडी सफरिंग विद लॉट मोर हायर क्राइम्स लाइक किडनैपिंग, मर्डर. सो व्हेन यू गो टू पुलिस स्टेशन कंप्लेनिंग दैट सर ये मेरे को काला बोला, the police wala will be so frustrated. It's like I have to handle murder, kidnapping, extortion and तू ये कंप्लेन लेके आया मेरे पास. वेरी गुड, उसने तेरे को काला बोला क्योंकि तू काला है. एनीवे, जोक्स अपार्ट. बट कैसा होता है ना कि वेस्टर्न कंट्री में ना रेसिज्म के मामले में बहुत लफड़ा हो जाता है. बट बायोलॉजिकली अगर हम लोग देखें, चलो ये सारी बातें छोड़ो, बायोलॉजिकली अगर हम लोग देखें ना, तो कोई अगर डार्क होता है ना तो उसके स्किन में मेलानिन काफ़ी ज़्यादा होता है. कोई अगर फेयर होता है ना, गोरा होता है ना, तो उसके स्किन में मेलानिन कम होता है. सर फेयर एंड लवली लगाने से मेलानिन कम होगा क्या? नहीं होएगा. वो एडवर्टाइजमेंट ये सब फेक होता है, कंप्लीटली फेक होता है. उसमें फोटो भी कितना मस्त बताया रहता है, ऐसा आधा आधा काला है आधा गोरा है. ओके, रिमेंबर. हाँ, हालांकि ऐसी बहुत सारी क्रीम है जो है ना, कैसा है कि समझो किसी को चिकन पॉक्स हो गया तो फोड़ी का है ना थोड़ा डार्क मार्क रह गया, पिंपल के मार्क रह गए, स्टिचेस के मार्क रह गए, तो उसको लाइट किया जा सकता है. बट एक्सट्रीमली गोरा करना इट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज अवर स्किन कलर इज डिटरमाइंड बाय जीन्स and you cannot apply any cream which will reverse the genes that you have gained from your parents. Extremely important. Okay. हाँ, along with that, if you take good care, avoid sunlight, dirt, dust, then your skin complexion can improve, but completely गोरा नहीं होएगा, जैसा कि वो एडवर्टाइजमेंट में बताते हैं कि ऐसा आधे में फेयर एंड लवली लगाया तो गोरा हो गया करके, आधा ब्लैक. ओके. एनीवे, द इम्पोर्टेंट पॉइंट ओवर हियर है कि जो लोग गोरे होते हैं ना उनमें मेलानिन कम होता है. हम इंडियंस में मेलानिन मीडियम होता है. वी आर लाइक आधा आधा प्यार का वादा, एकदम ज़्यादा भी नहीं एकदम कम भी नहीं. ओके. सो मेलानिन भी प्रोटीन का बना होता है. नेक्स्ट, प्रोटीन से रिलेटेड ये याद रखो कि अगर 1 ग्राम प्रोटीन हमारे बॉडी में टूटेगा ना, सो वो प्रोटीन हमको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देगा. 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, 1 ग्राम के पीछे. Okay, this becomes extremely important. Remember. Next, you can have a multiple choice question or objective type of question which says that हमारे बॉडी में जितना भी excess of glucose है ना, जितना extra glucose है, that excess of glucose is stored in animal body. Animal में remember wildest animal humans. हाँ, so हमारे बॉडी में excess of glucose is stored in liver. And it is stored in the form of glycogen. लीवर इज वेरी स्मार्ट. लीवर बहुत स्मार्ट है. लीवर को मालूम है आज खाना आया, कल का क्या भरोसा, कल हो ना हो. एंड अवर इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. इंडिया इज अ लैंड ऑफ फास्टिंग. हर फेस्टिवल के नाम पे उपवास रखवा दिया जाता है. ओके, पहले खाना बंद कर दो. ओके. Where there is a concept if the wife does not eat anything then the lifespan of husband increases. सो वेस्टर्न कंट्री वाले ऐसा डाउट पूछते हैं, अगर ऐसा है तो वेस्टर्न कंट्री में सारे हस्बैंड मर जाने चाहिए, बिकॉज वो लोग इस तरह का करवा चौथ ये सब नहीं रखता है. एनीवे, दैट बिकम्स टू माइथोलॉजिकल, दैट बिकम्स टू रिलीजियस. मानने वाले मानते, नहीं मानने वाले नहीं मानते. बट द मेन पॉइंट इज, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि जब तुम खाना नहीं खाते हो, जब तुम उपवास रखते हो ना, तब तुम्हारा लीवर जो ग्लाइकोजन स्टोर करके रखा है ना, उसको तोड़ता है, वापस से ग्लूकोज बनाता है, फिर वो ग्लूकोज टूटता है और तुमको ताकत देता है. द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज लीवर इज वेरी स्मार्ट. लीवर को मालूम है आज जितना एक्स्ट्रा खाना आया है ना, बचा के रखो उसको. सो लीवर विल स्टोर एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. रिमेंबर दैट. नेक्स्ट, दिस सेम एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन प्लांट्स बॉडी. इट इज स्टोर्ड इन प्लांट्स in the form of another nutrient called as, पढ़ ले, twinkle twinkle little starch. How nutritious this poem is. Okay. So plants में ना वो starch के फॉर्म में स्टोर होता है. हम इंसानों में, जानवरों में एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है. उसी तरह से अगर हमारे पास एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, सो ये एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स का ना 2 चीज़ हो सकता है. एक, या तो इससे ग्लूकोज बनाता है बॉडी, सो इससे ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस. एकदम इजी, गो वर्ड बाय वर्ड. जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, नियो मीन्स न्यू, ग्लूको मीन्स ग्लूकोज.
फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स, या तो फिर वो एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स को बॉडी क्या करता है ना, एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स विल अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड एज ए डीएमिनेशन। ये डीएमिनेशन प्रोसेस लीवर में होता है और फिर बॉडी क्या बना देता है, अमोनिया बना देता है। देन दिस अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड ईदर इनटू यूरिया और इनटू यूरिक एसिड। हमारे बॉडी में ये अमोनिया मोस्टली यूरिया में कन्वर्ट होता है। ये यूरिया जाएगा किडनी के पास और किडनी इस यूरिया को एक्सक्रीट करेगा बाय डिसॉल्विंग इट इन वाटर एंड फॉर्मिंग दिस वेस्ट लिक्विड कॉल्ड एज यूरिन। सो एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड या तो ग्लूकोज बना देगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, या तो फिर है ना वो लीवर में जाके पहले अमोनिया में कन्वर्ट होता है, अमोनिया के बाद यूरिया बनता है, किडनी उस यूरिया को यूरिन के फॉर्म में फेंक देता है। यूरिन का नाम यूरिन इसीलिए रखा है क्योंकि उसमें यूरिया होता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिमेंबर। वैसे ही ना बर्ड्स के अंदर यूरिक एसिड बनता है। सो बर्ड्स का जो यूरिन होता है ना पेस्ट लाइक, उसमें यूरिक एसिड होता है, ये तुमको याद रखना है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अमोनिया इज यूजुअली फाउंड इन फिशेस। एक्वेटिक एनिमल्स में यू विल फाइंड अमोनिया विच इज प्रेजेंट इन यूरिन, मैमल्स में यू विल फाइंड यूरिया एंड बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में यू विल फाइंड यूरिक एसिड। हालांकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, 11th स्टैंडर्ड में ये तुमको डिटेल में आएगा, अभी से थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखा तो अच्छा है बच्चों। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो यहां पर हमने प्रोटीन का पूरा सेक्शन वाइंड अप कर लिया। अब हम बात करेंगे फैट्स की। फैट्स का दूसरा नाम है लिपिड्स। और लिपिड्स किसके बने होते हैं, लिपिड्स बने होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के। सो लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स and glycerol. Glycerol is also called as a trihydroxy alcohol. Glycerol is also called as trihydroxy alcohol. Next, फैट्स का कैलोरीफिक वैल्यू, 1 ग्राम फैट अगर तेरे बॉडी में टूटेगा ना, सो वो तुझे 9 किलो कैलोरीज एनर्जी देगा। सबसे ज्यादा एनर्जी फैट्स दे सकता है, बट फैट्स का है ना शॉर्टकमिंग इज दैट कि फैट्स यूजुअली एनर्जी देता नहीं, फैट्स यूजुअली हमारे बॉडी में स्टोर होता है। सो पीपल दोज हु टेंड टू ईट लॉट ऑफ तेल वाला, घी वाला, बटर, चीज, सो इनके बॉडी में फैट्स बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। बच्चों इसमें सबसे बुरी बात यह है कि यही फैट्स अगर तुम्हारे ब्लड वेसल्स में स्टोर हो जाए, इन एडवांस बायोलॉजी फॉर योर कॉलेज सेक्शन यू विल लर्न, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस से कैसा होता है ना, हार्ट का जो ब्लड वेसल है वो अंदर अगर फैट्स से चोकअप हो रहा है या ब्लॉक हो रहा है, सो उसके वजह से हार्ट अटैक आने का रिस्क रहता है। इसीलिए यहाँ पे ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सेस ऑफ फैट्स के बारे में क्या करें हम। एक्सेस ऑफ फैट्स गेट्स स्टोर्ड, एक्सेस ऑफ फैट्स गेट्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी in the form of adipose tissue। देखो थोड़ा बहुत ऐसा फैटी टिश्यू चाहिए भी, क्योंकि ये एडिपोज टिश्यू ये क्या करता है ना, ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ये एडिपोज टिश्यू कहाँ पर होता है, फीमेल्स में इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट रीजन, ओके, मेल्स में इट इज प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, फीमेल्स में भी इट इज प्रेजेंट इन एब्डोमेन, थाइज एंड हिप एरिया। अब एब्डोमेन के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉड ने इसको फैट्स का कवरिंग दे दिया। दिस फैट्स का टिश्यू इज कॉल्ड एज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज लाइक बबल व्रैप। जब हम कोई महंगा गिफ्ट खरीदते हैं ना तो उसको बबल व्रैप में लपेट लेते हैं, या तो कोई थर्माकोल में है ना उसको लपेट लेते हैं, बिकॉज वी नो दैट इंडियन रोड्स हाउ स्मूथ द रास्ता इज ना, so the gift will keep dancing, तो the gift will undergo झटका with the container और गिफ्ट टूट जाएगा। सो अगर किसी तरह का शॉक या झटका लगता है ना, सो ये बबल व्रैप क्या करता है, वो झटके को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरह से ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, ये इंटरनल ऑर्गन्स बहुत महंगा गिफ्ट है जो गॉड ने हमको दिया है। सारे इंटरनल ऑर्गन्स के आजू बाजू में फैट्स का है ना कवरिंग होता है, उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। और ये एडिपोज टिश्यू इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। बिकॉज जिस तरह से समझो मैं बाइक चला रहा हूँ, अब क्या है, रास्ते में खड्डा, हमारा देश इतना अच्छा है कि खड्डे में थोड़ा बहुत रास्ता मिल जाता है। हमारे रास्ते में खड्डा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, खड्डे में थोड़ा बहुत रास्ता मिल जाता है, रिमेंबर। हटाओ यार, सब लोग चैनल रिपोर्ट करने लग जाएंगे, बोलेंगे बुरा बोलता है, ओके। अब बात यह है कि अगर मैं बाइक चला रहा हूँ, खड्डा आया, झटका लगा, हार्ट, लंग्स, एब्डोमेन, तो ये कैसा है ना,
इंटेस्टाइन, लीवर, ये सब टकराते हैं, ओके, इधर उधर एक दूसरे से. सो एडिपोज टिश्यू विल एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर. सो एडिपोज टिश्यू का फंक्शन क्या है? एडिपोज टिश्यू विल ऑफर प्रोटेक्शन, इट विल ऑफर प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन्स. सो इट विल ऑफर प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन्स. सेकेंड, ये और क्या करता है ना, ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन. Temperature control, if you want hi-fi language, temperature control is called as thermoregulation. Thermoregulation. Okay, so that is the main functioning of fats that we are supposed to know. अब फैट्स को कम करने के लिए हमको एक्सरसाइज करना चाहिए, तेल, घी, बटर, चीज़, ये सब कम से कम खाना चाहिए. हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स खाना चाहिए. हमारे दाल में प्रोटीन ज़्यादा होता है, रोटी खा सकते हो, चावल खा सकते हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, बट फैट्स है ना हमको लिमिट में खाना चाहिए. अच्छा, अदर देन फैट्स वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट विच इज कॉल्ड एज विटामिन्स. अब विटामिन्स में कैसा होता है ना बच्चों, दो तरह के विटामिन होते हैं. एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन और एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन. वाटर सोल्यूबल विटामिन में यू है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. बी कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन B1, B2, B3 ऐसे बहुत सारे विटामिन है, ओके. और दूसरा है विटामिन सी. फैट सोल्यूबल विटामिन में टेक्स्ट बुक बोलता है विटामिन A, D, E, K, बट इसका टेक्निक मैं तुमको बताता हूँ, ऐसे याद रखो. फैट, फैट यानी हिंदी में हम क्या बोलते हैं? चर्बी. अब भाई जिसको जितनी चर्बी है वो उतना कीड़ा करेगा ना. अगर तेरे दोस्त को ज़्यादा चर्बी है तो कीड़ा करेगा तेरे साथ वो, ओके. वैसे ही याद रख, फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट यानी चर्बी, चर्बी यानी कीड़ा करेगा. सो फैट सोल्यूबल विटामिन इज कीड़ा. विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए. कई बार चीज़ों को सीधा लेने से चीज़ें समझ में नहीं आती, उल्टा ले जाने से ना अच्छे से याद रहता है. सो फैट सोल्यूबल विटामिन में ये सब हमको याद रखना है. इसके और भी बहुत पॉइंट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे डिस्कस करते हैं. ऑलराइट, चल मेरा बेटा कंटिन्यू करते हैं. अब लास्ट का बहुत सारा पॉइंट है, ओके, एंड आई हैव टू लीव ऑल्सो, मेरा बाकी का कमिटमेंट भी है. बट कैसा है ना कि कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि सर थोड़ा 10th स्टैंडर्ड में हेल्प कर दो, इसलिए मैं सारे लेक्चर्स बना रहा हूँ बेटा, ठीक है. अब फटाफट वाइंड अप करेंगे, मस्त एकदम ईजी है, खाली सिर्फ ध्यान देते जा. मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ना, तुमसे एग्जाम में पूछा ना कौन सा है. सो भाई सबसे अबंडेंट प्रोटीन है रुबिस्को. सर रुबिस्को क्या होता है? रुबिस्को ना एक एंजाइम का नाम है जो प्रोटीन्स का बना होता है बेटा. इसका फुल फॉर्म भी लिख देता हूं. इसका फुल फॉर्म है रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट, रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस. सर ये एंजाइम कौन है, क्या करता है? अच्छा, इजी लैंग्वेज में ये एंजाइम ना समझो ये लीफ है. ये एंजाइम अगर चाहे तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड कैच करके दे सकता है प्लांट को, और अगर ये चाहे तो हवा से ऑक्सीजन कैच करके भी दे सकता है. मोस्टली दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, यानी फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, बट कभी कभी प्लांट्स ऑक्सीजन भी लेते हैं. कॉलेज सेक्शन में ये तुमको डिटेल में आएगा बेटा, जिसको फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं. उसका एक बहुत बड़ा फ्लो चार्ट है. एनीवे जब 11th में आएंगे तब देख लेंगे फ्लो चार्ट क्या है, उस चार्ट को ना चार्ट लेंगे तभी. एनीवे, सो ये सबसे अबंडेंट प्रोटीन, विश्व में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम है रुबिस्को, रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस. नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी होता है और फैट्स भी होता है. ओके, सो मैं यहां लिख देता हूं, द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन. इट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन. अब इसमें लाइपो का मतलब लिपिड्स यानी फैट्स का भी बना है, और प्रोटीन डायरेक्ट प्रोटीन्स का भी बना है. सो ये याद रखना है कि अपना जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो फैट्स और प्रोटीन्स दोनों का बना है. अब इसमें भी क्वेश्चन आता है कि फैट्स में कौन सा वाला फैट्स, तो उसमें थोड़ा फॉस्फोरस मिक्स है. सो इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन. आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स में. हमारे बॉडी के जो सेक्स हार्मोन्स है ना, जैसे फीमेल सेक्स हार्मोन है ईस्ट्रोजन, मेल सेक्स हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, और सॉरी फीमेल सेक्स हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन. मेल सेक्स हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन, और तो और अल्डोस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन है
ये सारे हॉर्मोन्स किसके बने होते हैं? ये फैट्स के बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ फैट्स। अल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन है जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है। अब समझो ये दोस्त का किडनी है, हाँ सर दोस्त का किडनी निकाल लिया, हाँ निकाल लिया, दोस्ती किया है तो निभाना पड़ेगा। अब इसके ऊपर ना यहाँ बेटा एड्रिनल ग्लैंड है, इसमें से ये हार्मोन निकलता है अल्डोस्टेरॉन। और अल्डोस्टेरॉन क्या करता है ना, यूरिन में से ज़्यादा पानी खींच लेता है ताकि हमको कम यूरिन हो और ज़्यादा पानी शरीर में बच जाए। ज़्यादा पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए यूरिन में, ये अल्डोस्टेरॉन का काम है। 11th स्टैंडर्ड साइंस में आएगा तुमको। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन फीमेल सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन मेल सेक्स हार्मोन है। बट तुमको एक खास बात बता दूं, मेल्स में भी ना ईस्ट्रोजन होता है यानी फीमेल हार्मोन होता है, और फीमेल में भी मेल हार्मोन होता है। स्कूल लेवल में तुमको यही बोला जाएगा कि मेल के पास सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन होता है, फीमेल के पास सिर्फ ईस्ट्रोजन होता है। गलत है बच्चों, मेल में भी फीमेल हार्मोन होता है, फीमेल में भी मेल हार्मोन होता है। सर क्या बोल रहे हो आप? यानी हर पुरुष में एक नारी है और हर नारी में एक पुरुष है। वेरी इंपॉर्टेंट। पर कैसा होता है ना, मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन काफ़ी ज़्यादा होता है, फीमेल हार्मोन कम होता है, इसलिए मेल में ना मेल कैरेक्टर ज़्यादा निकल के आते हैं, और फीमेल में ना फीमेल हार्मोन ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरॉन कम होता है। मैं तुझे एक होमवर्क दे देता हूँ, कहाँ लिखूँ मैं ये होमवर्क? यहाँ एकदम नीचे लिख देता हूँ। तू ना होमवर्क के तौर पे ये ढूंढना कि व्हाट इज गायनेकोमास्टिया। कॉलेज सेक्शन में आएगा ना तब तुझे पता चलेगा हार्मोन्स का क्या क्या गड़बड़ होता है। एंड व्हाट इज वायरलिज्म, इससे तुझे पता चलेगा कि एक पुरुष को जब महिलाओं की तरह कैरेक्टर और उसकी तरह अपीयरेंस आने लगता है उस बीमारी को क्या बोलते हैं, और किसी फीमेल को अगर मेल की तरह कैरेक्टर आने लगा, समझो किसी फीमेल को मूंछ दाढ़ी आने लगा, दाढ़ी वाली औरत वो बीमारी है, हार्मोन का बैलेंस में लफड़ा होता है ना। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है? मैं यहाँ लिख देता हूँ होमवर्क, ये ढूंढना और इसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो, गूगल से कॉपी पेस्ट करो, पोस्ट इट इनटू द कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब फाड़ू जो है ना, फाड़ू कौन से विटामिन का बना होता है? तो ये बना होता है विटामिन B2 का, जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। और नाड़ू जो है ना, ये किसका बना है? ये विटामिन B5 का बना है, जिसका नाम है निकोटिनामाइड। इतना याद रखना है बेटा, ओके। अब बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, इसमें से कुछ पॉइंट्स मैं करवा दूंगा, कुछ तुमको होमवर्क दे देता हूं। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की कमी होती है। इसमें जैसे ही लाइट थोड़ी डिम हो जाती है ना, पेशेंट को इतना क्लियरली नज़र नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन A खाना चाहिए। गाजर बहुत काम आता है। गाजर यानी काट के आँख पे रखने का नहीं, खाने का। आजकल लोग गाजर टमाटर क्या क्या रखता है आँख पे, पूरा सलाद बना लेता है। ओके नेक्स्ट, स्कर्वी। स्कर्वी वो बीमारी है जहाँ विटामिन C की कमी होती है, पेशेंट के शरीर में विटामिन C कम हो जाता है। ओके, इसके वजह से ब्लीडिंग गम्स होता है, उसके मसूड़ों में से बहुत खून आने लगता है। रिकेट्स जो है ना, विटामिन D की कमी है। बेरी जो है ना, विटामिन B1 की कमी है। बेरी अब ये तेरा होमवर्क रहेगा। रिकेट्स में अगर विटामिन D कम है तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ओके। और बेरी में विटामिन B1 कम है, तो बेरी में पेशेंट को क्या क्या तकलीफ होगा? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ बेरी? पोस्ट इट इनटू द कमेंट सेक्शन। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स? पोस्ट इट इनटू द कमेंट सेक्शन। और एक तुझे दे देता हूं, पेलेग्रा। पेलेग्रा किसका डेफिशिएंसी है? विटामिन B में कौन सा वाला B का डेफिशिएंसी है पेलेग्रा, और उसके क्या सिम्टम्स है? पोस्ट इट इनटू द कमेंट सेक्शन, दैट इज योर होमवर्क। न्यूराइटिस कौन से विटामिन के कमी की वजह से होगा? ये भी तेरा होमवर्क, ठीक है। न्यूराइटिस में एक पॉइंट एक्स्ट्रा शेयर कर लेता हूं, तेरे को थोड़ी मदद कर देता हूं। आइटिस यानी सूजन, इन्फ्लेमेशन, न्यूरॉन्स पे सूजन होगा, नसों पे बहुत सूजन होता है, इसलिए पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है इसमें। अनीमिया में ना पेशेंट के बॉडी में आयरन की कमी होती है। आयरन की कमी होने की वजह से भाई पेशेंट के बॉडी में RBC भी कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, कुछ लोगों में दोनों भी कम हो जाता है, ओके। नेक्स्ट, फुल फॉर्म। फाड़ का फुल फॉर्म है फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ओके। फमन का फुल फॉर्म है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये सब ना मैं तुझे 11th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में कराऊंगा बेटा, फाड़ देंगे तभी।
फाड़ देंगे यानी फ्लेविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड देंगे। हाँ, फाड़ देंगे ऐसा मवाली लैंग्वेज नहीं। हाँ, वेरी बैड बेटा। राम 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 राम। नाड का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। और नड़प का फुल फॉर्म सेम, चलो निकोटिनामाइड, पूरा लिखना पड़ रहा है वापस, डॉक्टर राइटिंग में लिखूँ ना, घसीट लूँ सब फटाफट। निकोटिनामाइड एडिनाइन, एक्चुअली मुझे जाना है मेरे क्लिनिक, फटाफट ये फिनिश करके, मुझे लेट हो रहा है। निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, डेली विटामिन का रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, ये भी तुम्हारा होमवर्क रहेगा। तो जो जो होमवर्क दिया ना फाइंड आउट करो, ओके। बाकी का पार्ट मैं करवा देता हूं तुमको। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड के बारे में। सर क्या भारी केमिकल बोला, डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड। ए कुछ भारी नहीं बोला रे, खाली हाई फाई लैंग्वेज बोला। डाई हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन 2 है, मोनो ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन 1 है। ओ तेरी सर, बिस्लरी की बात कर रहा है, तुम पानी की बात कर रहे हो। कितनी कमाल की भाषा है ना, केमिस्ट्री की भाषा। डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड। जैसे किसी मेहमान के घर पे जाओ ना, अपने कजिन के घर पे जाओ, तो बोलेगा क्या चाहिए आपको, तो मतलब ले आओ डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड। ही विल बी लाइक, हैं, वो सुनते बराबर 180 हो जाएगा। 180 यानी फ्लैट, हाँ 180 डिग्री फ्लैट, बेहोश हो जाएगा। बोलेगा रे 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 क्या मांग रहा है ये करके, फिर उस पर पानी मारने का, बोलना यही तो मांग रहा था, पानी मांग रहा था, पानी भी नहीं है। जाओ थोड़ा जाके पढ़ो, यो बायो सर का लेक्चर अटेंड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पानी की बात करते हैं। हमारे शरीर का, बॉडी का कितना % पानी है, 65 से 70%। सेल के अंदर कितना पानी भरा होता है, 70%। हमारे खून में, ब्लड प्लाज्मा में कितना पानी है, 90%। दूध वाला जो दूध देता है उसमें कितना पानी है दूध में पानी नहीं होता, पानी में थोड़ा दूध होता है। ओके, मूविंग ऑन। अब खाने पीने में ना हमको थोड़े फाइबर्स भी खाना चाहिए, सेल्यूलोज भी खाना चाहिए, यानी कुछ कच्चा भी खाना चाहिए। ओके, जैसे सैलड, ये सब हो गया। अब ये कहाँ हमको मिलेगा, ये भाई ये हमको मिलेगा फ्रूट्स में, ये फाइबर्स हमको मिलेगा साथ साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, हरी सब्जी में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, दूधी, मेथी, मूली, करेला। सर ये सब तो एलर्जी है हमको, ये क्या होता है हमको नहीं मालूम है ए खाने का ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और तो और सीरियल्स, राइस, व्हीट, जवार, बाजरा। सीरियल्स यानी टीवी पे सीरियल देखने का नहीं, हाँ बहुत मारेगा। ओके, जो कामयाब लोग होते हैं ना वो टीवी और मोबाइल फ़ोन का बहुत लिमिटेड यूज़ करते हैं, याद रखो। सो ये सब खाने की वजह से ना, फाइबर्स की वजह से और पानी की वजह से कैसे होता है ना, हमारा जो स्टूल्स होता है, हमको जो पॉटी होती है ना, वो पॉटी है ना एकदम सॉफ्ट सेमी सॉलिड पेस्ट की तरह होती है, और उसका इवैक्यूएशन हमारे शरीर से आसानी से निकल जाता है। अगर कोई इंसान फाइबर्स कम खा रहा है, सेल्यूलोज कम खा रहा है, तो उसको कब्ज़ की शिकायत होती है, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। चलो मैंने बता दिया, ये भी होमवर्क देने वाला था तुमको, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब बाकी चलो, यहाँ तो मेरा टॉपिक हो गया, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट बेटा, ओके। और जो जो मैंने होमवर्क दिया है ना, उसका सारा आंसर कमेंट सेक्शन में डालो। पेलेग्रा, न्यूराइटिस, दिन का कितना विटामिन चाहिए रहता है, ओके। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने बात किया है फैट्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में, वाटर के बारे में, और विटामिन से जुड़ी बहुत सारी बीमारियों के बारे में। आने वाले लेक्चर में अब सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन बचा है, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम कवर कर